Ask Ballal sir to please address the gathering. So how is the Josh? I am intervening over here. This was not my turn, but because of some technical hitches, Collector sir has started for this program and I cannot say him we have got third speech over here. So that is why we have on spot changed the program a little bit. We had to change. The collector sir and award ceremony would be held right now, and later on the third remaining lecture, which is most important lecture of today's function, will be there. So I am here on the dais to congratulate, to compliment each and every member of NDCDA. I compliment all the EC members for working very, very hard for this function, and we have seen the result of the function. ये इतने तरीके से सक्सेसफुल होने वाला है, इसकी आशा हमें शुरुआत के दिनों में नहीं थी, लेकिन आपके उत्साह ने हमें इतना प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी मेंबर फॉर द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे. मैंने ऑर्गेनाइजर से सीधा सीधा बोला था रिटायरमेंट के लास्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मेरा है तो ये होना चाहिए अच्छा. दिस वाज नॉट ओपन इनविटेशन टू ऑल ऑफ देम एंड यू हैव मेड इट ए ग्रैंड सक्सेस. और इतनी तादाद में इतने 2 साल में हमने कुछ नहीं किया. वी वर बाउंड इन आवर बाउंड्रीज एंड वी वर लिटिल बिट नर्वस. देयर वाज अ वेव ऑफ डिप्रेशन ओवर देयर on the total fraternity, and that is why it was impossible to hold the functions because of corona. So there was some excitement in the atmosphere and you have complemented it properly. Not only there are chemists from Nagpur region, there are chemists, 21 chemists from Gondia, 7 or 8 from Chandrapur, then from Wardha. So almost all the Vidarbha region is covered by this program. It itself speaks a lot about the quality of the program. And the speech which we have seen up till now, they are best in my life at least. They were wonderful things. Kale sir has given us a very beautiful insight and he has given a new clue to the new generation of the pharmacists upcoming in the Nagpur area. Secondly, the life is beautiful was very, very charming speech by Chari sir, and again we will be holding a full session of Chari sir, half-day session of Chari sir very soon, either on the platform of NDCDA or through Me2V. Then I take another chance, I take this opportunity because I have 5 more minutes till collector sir comes. I have to announce one different idea thrown by Me2V. We are very soon starting a Pharma Talk forum in Nagpur city. So as and when the dignitaries from pharmacy field, from academics or regulatory or from manufacturers or for R&D comes into Nagpur, we are going to invite them for a Pharma Talk. It would be only a 30-minute session. So we are planning it. It is under planning session. We will be holding the Pharma Talk either in Nagpur Chemist Register Association's hall or it would be held in Chitnavis Center. We will be registering the candidates from pharmacy field from all the faculties. For that, annual membership would be taken and almost every fortnight, Arvind? Yes, once in a month? So once in a month, a session would be held of the dignitary visiting the Nagpur city and the annual membership would be taken from the pharmacist. So that is a beautiful concept going on parallel lines of VMA, Vidarbha Management Association. So it would be starting from next month only. We are trying for that. So it would be another feather in our cap of NDCDA. This is the standee of Pharma Talk. We are going to launch very, very soon. So those people who are interested in upgrading themselves or upscaling themselves in the field of pharmacy profession, they can contact us to Arvind and to Sachin, and they can get themselves registered for this Pharma Talk as an annual membership.
आता आज सेलिब्रेशनचा दिवस असल्यामुळे मी काही फारसा रेग्युलेटरी डोस तुम्हाला देऊ इच्छित नाही, तरी आई वॉन्ट टू ब्रिंग 3 थिंग्स इन टू नोटिस ऑफ एवरीबडी. नंबर 1, जैसा सर ने बोला है, पवनीकर सर ने आपको डिस्क्लोज किया है, ADR रिपोर्टिंग. Friends, we are in the arena, we are in the field wherein now the quality focus is gone. The quality तो होना ही होना है, that is bare minimum requirement. आता 99% क्वालिटी ड्रग्सच राहणार आहे, परंतु त्या 1%चं काय करायचं त्याच्यावर आपला फोकस चालला आहे. सो एनीवेअर इफ यू फाइंड एनी ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन, काइंडली रिपोर्ट टू FDA and the nearest doctor. That is number 1. Second is tuberculosis scheme. If we want tuberculosis free India by 2025, 2025च्या अगोदर आपल्याला ट्युबरक्युलोसिस फ्री व्हायचं असेल, सो धिस इज द लॉट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. You are the people who first come to know about any tuberculosis patient in the society. फार्मासिस्ट शिवाय कोणालाही असं शोधून काढणं शक्य नाही. तुम्ही ही हॉलमधली युनायटेड स्ट्रेंथ जर वापरली तर यू विल सी टू इट दॅट आपल्या एरियामध्ये, तुमच्या एरियामध्ये ट्युबरक्युलोसिसचं पेशंट राहूच शकत नाही जर तुम्ही फक्त ॲक्टिव्ह राहिले आणि रिपोर्ट करत राहिले तर ADR सोबत तुम्हाला ट्युबरक्युलोसिसचे पेशंट पण फाइंड आउट करायचे आहे. जर कोणी विकत घेताना पर्टिक्युलर मेडिसिन्सची जी तुम्हाला माहिती आहे ती विकत घेताना कोणी आढळला, काइंडली रिपोर्ट टू द CS और FDA और DHO इमिजिएटली. हे करून आपण सोसायटीची मदत करतो आहे. माइंड वेल की आपण ट्युबरक्युलोसिसला किकआउट करतो इंडियामधनं, सो आपलं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन पाहिजे. द थर्ड थिंग विच आय एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू युअर नोटिस इज CCTV कॅमेराज. नंबर 3, आता सध्या आमच्या नोटिसेसमध्ये तो पॉईंट, शोकॉज नोटिसेसमध्ये CCTV आहे की नाही हा पॉईंट इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनिथिंग इन्स्पेक्शन रेकॉर्डमध्ये आणि शोकॉजमध्ये चाललेला आहे. Right now we are not taking direct action on basis of CCTV cameras fitted or not. या बेसिसवर आम्ही तुमच्यावर सस्पेन्शन वगैरे देणार नाही आहोत, सध्या करत नाही आहे, परंतु फ्युचर इज दॅट. So as early as possible you go through this and have CCTV cameras installed. कारण हे अधिकार कलेक्टर ऑफिसला आहे, पोलिसांना आहे आणि CRPCमध्ये याच्यावर ॲक्शन होऊ शकते. तुम्ही नाही, परंतु तुमच्या बाजूच्या फार्मसीमध्ये काहीतरी गडबड झाली, तिथे नशेली दवाई किंवा काय प्रॉब्लेम झाले तर त्या एरियातले CCTV फुटेज ओळखण्यात येतील आणि तुमचा कॅमेरा, तुमचं फुटेज, तुमच्या फार्मसी फुटेज तुम्हाला वाचवेल. सो इट इज नॉट फॉर द एनी इल इफेक्ट्स, परंतु तुमची सेफ्टी आधी बघावी म्हणून ते CCTV कॅमेराज सेटअप पाहिजे आणि त्याच्यावरून तुम्ही फ्री व्हा. सो दीज आर द 3 थिंग्स फ्रॉम रेग्युलेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू आय वुड लाईक टू टेल टू यू इन दिस मोमेंट. वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ही एक सेलिब्रेट करण्याची गोष्ट आहे. जसं सरांनी पण सांगितलं आणि आत्तापर्यंतच्या स्पीचेसमध्ये आलेलं आहे की कोरोना कालावधीत आपण फार कठीण कालावधीतून गेलेलो आहे. सो लेट अस सेलिब्रेट टुडे अँड दॅट इज वाय वी आर गॅदर्ड ओव्हर हिअर. थोडेसे नाराजी, थोडंसं उत्साह कमी, थोडंसं डिप्रेशन, थोड्याशा निगेटिव्हिटीज या सगळीकडे राहतील आणि त्याला आपण कंट्रोल करू शकत नाही. चारी सरांच्या लेक्चरमधल्या ज्या वस्तू आपण कंट्रोलच्या बाहेरच्या आहेत, वी विल नॉट फोकस अपॉन दॅट. So what is your perception over this program? That we are going to take feedback from you later on. जर असे कार्यक्रम तुम्हाला तुमच्या तालुक्यात करायचे असतील, तिथे सुद्धा NDCDAच्या माध्यमातून हे कार्यक्रम, आजच्या सारखे कार्यक्रम तुमच्या तालुक्यांना, तुमच्या कम्युनिटीसाठी, तालुक्यातल्या कम्युनिटीसाठी करता येतील भविष्यात. कलेक्टर सर इज ऑन वे अँड व्हेरी सून ही विल बी रिचिंग. चेतन जी, आई इन्वाइट यू. चेतन मरवा सर नीचे खड़े हैं. चेतन जी को ऊपर बुला लो डायस पे. चेतन जी को बुला लो. गणेशानी सर मार्गदर्शन करावं थोडं 5 मिनिटाकरता. आय इन्व्हाइट श्री हरीश जे गणेशानी, द सिनियर फार्मासिस्ट आणि MSPCचे आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह आज या मॉबला त्यांनी ॲड्रेस करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. थँक्यू. आदरणीय मंच पर सभी हमारे अतिथि विराजित होने के हैं. अभी कलेक्टर साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं
इस कार्यक्रम की कल्पना संकल्पना करने वाले हम सबके चहेते, हम सबके आदर्श आदरणीय बल्लाड़ सर, एक कल्पना उनके मन में 1-1.5 महीने पहले आई थी कि फार्मासिस्ट डे इस बार बहुत अच्छा आयोजित करें। बहुत अच्छा आयोजन हुआ। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं कामना करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी अनेक वर्षों तक हम फार्मासिस्ट दिवस सभी फार्मासिस्ट बंधु इस तरह से मनाते रहें। सर, मैं डिग्निटरीज जो यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत आदरणीय यहाँ पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, वर्तमान अध्यक्ष बैठे हैं, चेतन मारवा जी हैं, कावड़कर जी हैं, हमारे संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। 11 वर्ष मुझे आप लोगों के सहयोग से फार्मेसी काउंसिल में काम करने का अवसर मिला। मैंने जो भी मेरे से संभव हुआ मैंने करने का प्रयास किया और लोग जो विदर्भ को बहुत पीछे समझते थे, लोग समझते थे कि विदर्भ में काम नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता और नहीं करने की हम लोगों को एक तादीद दी जाती है, उसको मैंने थोड़ा परिवर्तित करने का प्रयास किया। हमने 66 पीसीसी लिया सर, बल्लाड़ सर। इस 6 जिलों में 66 पीसीसी लिया और उसमें भी मैं आप लोगों को विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उस पीसीसी में भी सर एक पीसीसी महिलाओं की हुई जो पूरे महाराष्ट्र में पहली बार हुई और एक पीसीसी डीडीएचएस डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास हुई जो महाराष्ट्र में पहली बार हुई और एक पीसीसी हमारी जो रेलवे फार्मासिस्ट के लिए हुई वो भी महाराष्ट्र में भाईखला में पहली बार हुई। और आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग चाहते हैं फार्मासिस्ट का अब रोटेशन होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मुकुंद जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, संगठन भी चाहता है, रेगुलरिटी भी चाहती है। पवनीकर साहब ने अपने संबोधन में भी कहा कि अपग्रेडेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज नीड ऑफ टाइम, वी हैव टू अपग्रेड आवर सेल्फ। हमने काउंसलिंग करना चाहिए, हमने बात करना चाहिए, हमने चर्चा करना चाहिए, पेशेंट के फैमिली के बारे में पूछना चाहिए और पेशेंट के शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में कि कितना परसेंटेज क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या घर पहुंच सेवा चाहिए, तो ही हम ऑनलाइन को और ये चैन छापिस को कॉम्पीट कर पाएंगे। ये बहुत बहुत सुंदर उन्होंने अपने विवेचन में जो कहा है। और सर, मैं सभी लोगों से, आप लोगों के सामने, हमारे भाई रिटेलर बंधु भी यहाँ बैठे हैं, वो निवेदन करता हूँ कि सही में बहुत से रिटेलर ऐसे हैं जो लिटरली, मुझे दुख है, मैं भी रिटेलर हूँ बेसिकली, कि कभी कभी थोड़ा हंसना भी चाहिए, कभी कभी थोड़ा हंसना भी चाहिए, क्योंकि पेशेंट पहले ही डॉक्टर के यहाँ से थोड़ा मुरझा के आता है और वो मुरझा के आने के बाद वहाँ 1 घंटा बैठने के बाद हमारे डॉक्टर लोग इतने सक्षम हैं कि वो उसको डोजेस फॉर्म समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, पेशेंट ज़्यादा है और डॉक्टर्स कम हैं। तो हम फार्मासिस्टों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम पेशेंट को डोजेस सिस्टम समझाएं। बहुत से डॉक्टर लिख लेते हैं SOS HS लिख देते हैं, तो पेशेंट को ये नहीं समझता। तो हम लोगों ने उसको समझाना चाहिए कि ये जो रात को सोते समय लेने वाली ड्रग है, या रात को 8 बजे लेने वाली रोजुरोस्टेटिन 8 बजे लेने वाली गोली है, ऐसा डॉक्टर ने 1-0 करके ऐसा 1 लिख देते हैं। तो वी हैव टू डू दैट जॉब, हमने वो करना चाहिए। एज ए फार्मासिस्ट ये हमारी ड्यूटी होना चाहिए, हमने बताना चाहिए। हमने पेशेंट को जितना हम बात करेंगे, जितना संवाद करेंगे, जितनी चर्चा करेंगे, उतने पेशेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे सर। यानी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भी कहीं पर भी बात करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए। हमने हर विषय पे पेशेंट से चलना चाहिए, उसके फैमिली मैटर में,
अदर देन फार्मेसी के मैटर पे, अदर देन बिजनेस के मैटर में, अदर देन बाकी जो हमारी सिर्फ दवा 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 को छोड़ के भी हम चर्चा करें। आई थिंक मुझे कितना समय दिया है बल्लाड सर, मैं बोलूं आप आइए। आले आहेत सर, हाँ कलेक्टर साहब अभी 2 मिनट में पहुंच रहे हैं। मैं यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज सुबह भी एक फार्मासिस्ट डे का हमारा कार्यक्रम हुआ। हमने मुकाबला किससे करना है? ऑनलाइन वालों से करना है, चेन शॉपिस से करना है। और ये जो डिस्काउंट जो सर ने, एक वक्ता ने कहा कि डिस्काउंट इज एक्चुअली नॉट प्रॉब्लम, रिलेशन इज प्रॉब्लम। हम रिलेशन डेवलपमेंट करें। रिलेशन हम जितने डेवलप करेंगे उतने हमारे पेशेंट बने रहेंगे, उतने हमारे ग्राहक बने रहेंगे। और वही चीज़ हमें हमेशा बिजनेस को बना के रखती है। मैंने तो पर्सनल लाइफ में ये देखा है सर कि हम लोग अगर हमारी संवाद, हमारे दिवे साहब भी यहाँ आए हैं आज, राजेंद्र दिवे सर, वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत अधिक बोलते हैं जब हमारी सभाओं में आते हैं। हमारे अनेक कार्यक्रम में वो फैकल्टी रहे और मुझे तो बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ बैठे हुए बल्लाड सर हैं, नांदेकर सर हैं। हमारे काउंसिल में इन लोगों को जब जब हमने निवेदन किया, हमारे फैकल्टी के रूप में हमें उनका सहयोग मिला। तो मैं सब लोगों का आभार मानता हूं। और सर यहाँ पहुंच चुके हैं, उनका यहाँ आगे मैं मंच बल्लाड सर को सौंपता हूं। बल्लाड सर, We welcome our Honorable Collector Sir, Dr. Bipin Itankar Sir. All are requested to please give a huge round of applause and welcome to Sir. I request the video of Gadkari Sir addressing for pharmacist. I request the audio video technical team to please play the video of Gadkari Sir. नमस्कार। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि नागपुर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन 25 सितंबर 2022 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मना रहा है। सभी फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कोविड के कार्यकाल में आप लोगों ने समाज की सेवा करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। मानव सेवा के लिए समर्पित आपकी सेवा के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इस वर्ष में फार्मासिस्ट दिवस की थीम को एक स्वस्थ दुनिया के लिए एकजुट तथा कार्यरत फार्मेसी यह है। मैं इसकी सराहना भी करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी फार्मासिस्ट बिरादरी इस संकल्पना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करेगी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में, वैसे दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, पर दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा है। हमारी जेनेरिक मेडिसिन जो है उसके बारे में भी बड़े प्रमाण पर संशोधन हो रहा है। गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि जेनेरिक मेडिसिन भी आप उसका उपयोग करके गरीबों को अगर देने के लिए योजना बनाएंगे तो वो भी गरीबों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एहसान होगा। सामाजिक दायित्व के भाव से ये भी बात आप जरूर सोचिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं आपको विशेष रूप से शुभकामना। Now I request Dr. Pushpaz Ballal Sir, our both the faculties, Mohan Kale Sir, Siraj Sir, to please take your respected places on the dais, and I request Shri Shrikant Dubey ji to please escort our Honorable Collector on dais. I request Shri Mukunji Dubey to also join the dais.
Respected Pawnikar sir, please join the dais. Kawalkar sir and me too, President Chetan Marwa sir. I request I request Dr. P.M. Ballal sir to kindly welcome our Honorable Collector sir. और साथ ही मैं हमारे मार्गदर्शक बल्लाल सर से निवेदन करता हूं और हेतल सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सदन से विपिन इटनकर सर का परिचय कराएं। Dr. Vipin Itankar sir hails from Chandrapur district of Vidarbha region. Dr. Itankar sir studied in Vidyaniketan school there till class 12th and later completed MBBS at Indira Gandhi Government Medical College, Nagpur. Later he studied postgraduate at Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. He is the son of Vitova Itankar ji, who worked as a junior manager in Chandrapur-based Maharashtra Electrosmelt Limited, and her mother is Srimati Sharda Ji Itankar, who is a homemaker. Dr. Vipin Itankar sir cleared Union Public Service Commission examination with flying colors. He was Maharashtra topper in the examination in 2014. He joined the IAS, Additional Chief Secretary Services, General Administration Department. Later he was appointed as a collector at Nanded and now been transferred to Nagpur due to his constant hard work and for the betterment and development of our Nagpur region. Whatever the responsibilities given to him, he is the fast finisher. What we came to know from our MSPC member Shri Ramdevji Dad sir, he is happily married to Dr. Srimati Shalini and having 2 kids. जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है. सर का इंट्रोडक्शन तो मिल नहीं पाया लेकिन हम सब ने गूगल से सर्च कर लिया सर का इंट्रोडक्शन. So hereby we request the August gathering to kindly give the huge round of applause for Dr. Vipin Itankar sir. Now, मैं निवेदन करता हूं हमारे मार्गदर्शक श्री बल्लाल सर से कि हमें आशीर्वचन दें. मंचकावर उपस्थित आदरणीय कलेक्टर महोदय डॉक्टर विपिन इटनकर सर, आमचे जॉईंट कमिशनर श्री विराज पवनीकर सर, सिराज सर, काळे सर, NDCDAचे अध्यक्ष कावडकर सर आणि Me2We फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री चेतनजी मारवा, तसेच ऑफ द डायस उपस्थित नागपूर, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर येथून आलेले केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट, I welcome you all and I compliment and acknowledge you on day of World Pharmacist Day. So today is the day of celebration of our service to the humanity. कोरोना कालावधीमध्ये आपण एवढ्यांनी तुम्ही सर्वांनी सगळ्यांनीच FDAनी पण इतकं प्रचंड काम केलेलं आहे की त्याची तोड नाही. अगदी ते डॉक्टरसुद्धा आपली प्रॅक्टिस बंद करून आपल्या घराच्या खुराड्यात लपून बसले होते. त्यावेळेस फक्त केमिस्ट शॉप उघडे होते. अनफॉर्च्युनेटली सर आम्हाला कोविड वॉरियर्स म्हणून ऑफिशियल टॅग जरी नाही मिळाला, बट वी वेअर वॉरियर्स. 2 वर्ष आम्ही घराच्या बाहेर पडू नाही शकलो, पण आज आम्हाला सुंदर मौका मिळालेला आहे आमच्या हातात की वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आणि आय ॲक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू फॉर दिस. मी जास्त वेळ न घेता पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याची विनंती करतो. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. हमारे नागपुर जिले की शान, जिन्होंने अपना पदभार संभालते ही अपनी विशिष्ट शैली का उदाहरण हम सबके समक्ष रखा है, ऐसे हमारे ऑनरेबल कलेक्टर
श्री डॉक्टर विपिन इटनकर सर को सुनने के लिए हम यहाँ लालायित हैं। मैं उन्हें ससम्मान पोडियम पर आमंत्रित करता हूँ। आजच्या या फार्माकॉन 2022 फार्मासिस्ट कॉन्क्लेव या कार्यक्रमासाठी मंचावर असलेले सगळे केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी, आमच्या FDA चे वरिष्ठ अधिकारी आणि माझ्यासमोर बसलेले सर्व केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट दे पूर्ण विदर्भातून वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आलेले, सर्वप्रथम मी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेच्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। कारण फार्मासिस्ट आणि डॉक्टरचा हे रिलेशन मागच्या 20 वर्षापासून म्हणजे 10 साल सर्विस को हो गए, उसके पहले भी डॉक्टर था और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा स्पेशलिटी भी फार्माकोलॉजी में ही था, इसलिए दवाई और दवाई देने वालों से मेरा गहरा रिश्ता है। आणि आताच सरांनी सांगितलं की फार्मासिस्ट आणि आपले जे फार्मासिस्ट फैमिली जो है वो काफ़ी महत्व रखती है और इसका महत्व कोरोना पीरियड में और बढ़ के आया कि जब मैं खुद कलेक्टर था नांदेड़ का, तब मुझे पता है हमारे FDA के लोग ऑक्सीजन लाने से, रेमडेसिविर लाने से, हर चीज़ में दुकान में बैठ के कंट्रोल करना क्या रोल हमने निभाया। इसलिए आप सबका मैं एज ए कलेक्टर आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सर ने कहा कि हमको इतना काम करने के बाद भी कोरोना वॉरियर का टॅग नाही मिला। मला असं वाटते डॉक्टर म्हणून आम्हाला हिपोक्रेटिक ओथमध्ये काम करा, तारीफ की बिना इससे हम काम करते हैं, इसलिए आज भी हम काम कर रहे हैं। आणि कोणालाही तुम्ही जर विचारलं की कोरोना काळामध्ये कोणी काम केलं तर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, कारण मला डॉक्टर म्हणून मी जेव्हा बघितलं फर्स्ट वेव्हमध्ये जेव्हा सगळे लोक त्या बिमारीला नवीन होती घाबरून जेव्हा आतमध्ये होते, तेव्हा डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, मेडिकल शॉप उघड्या होत्या आणि आपण चांगल्या रीतीने हे दोन्ही वेव्ह 1 आणि वेव्ह 2 आपण चांगल्या रीतीने आपण त्याला उत्तर चांगला दिलेलं आहे। आता या मंचावरून मी जास्ती काही बोलणार नाही, फक्त एक सजेशन मला द्यावंसं वाटतं की आत्ताच आपल्या ऑनरेबल गडकरी सरांनी एक CSRचा उल्लेख केला। मला असं वाटतं की आपलं फार्मसी आणि मेडिसिनल जे वर्ल्ड आहे ते कधीच लॉसमध्ये जात नाही, एव्हरीवन अर्न अ बिट ऑफ प्रॉफिट। तर मला असं वाटतं की तुमच्या असोसिएशनने जसं मोठ्या मोठ्या कंपन्या, आय एम जस्ट थ्रोइंग एन आयडिया, यू कॅन सी वेदर इट इज फिजिबल ऑर नॉट, की जसा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचा CSR असतो दॅट वी यूज ड्युरिंग कोरोना ऑल्सो अँड वेरियस डिझास्टर वी यूज इट ॲट रेग्युलर बेसिस। तर तुम्ही जर पूर्ण या विदर्भातलं तुमचं स्टेट डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन, रिजनल असोसिएशन एक असा एक्सक्ल्यूसिव्ह अकाउंट बनवला आणि त्याच्यामध्ये आपलं थोडं प्रॉफिट जर ठेवलं तर दॅट फंड कॅन बी यूज। कारण आमच्याकडे एवढे गरीब लोक येतात ज्यांना ड्रग्स भेटत नाही। कारण जर आता फॉर एग्जांपल एखाद्या गरीब मुलाला जर थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, तो उसको ड्रग्स देने के लिए उसका पैसा गवर्नमेंट में होता है, बट उसको ऐड ऑन करने के लिए अगर आपने एक जॉइंट अकाउंट बनाया और उसमें आपने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट से 2% ऑफ योर प्रॉफिट आपने उसमें रखा और उस अमाउंट से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये जमा होते हैं साल भर में, तो उससे हम गरीब लोगों के लिए हम सेवा कर सकते हैं। वो गरीब लोग किसको देना, हम कलेक्टर ऑफिस से आप लिस्ट ले लो, यानी किसी की सिफारिश उसमें नहीं चलेगी। जिसको ज़रूरत है हम डीन को इन्वॉल्व करेंगे, हम सिविल सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है कि ये करने में कोई हर्ज नहीं। हमने नांदेड़ में भी सोचा था, पर उसके पहले कोरोना खत्म हो गया, फिर मेरी ट्रांसफ़र होगी, तो वहाँ पे भी फार्मासिस्ट वेयर पॉजिटिव, उसमें हमने डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट हम एक साथ काम करते हैं। अगर इस पे अगर सक्सेसफुल हुए तो ये मुझे लगता है कि पहला मॉडल पूरे इंडिया में होगा कि जहाँ पे आपकी एसोसिएशन सामने आके एक सेपरेट अकाउंट बना के उसमें से गरीबों को, दैट मीन्स यू आर डूइंग द CSR रोल। जो छोटे मोटे जो भी आपके बिजनेसमैन हैं उसमें ये करना चाहिए। ये कह के आगे एज ए कलेक्टर मेरे तरफ कोई भी इशू आपका हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। कोई भी आपकी जेन्युइन तकलीफ हो और जो मेरे से रिलेटेड हो और जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप निश्चिंत होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, यहाँ बोलने का अवसर दिया इस वर्ल्ड फार्मेसी डे पे,
आपको संबोधन करने का मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और एक बार आप सभी को जो आप यहाँ पे दूर दूर से आए हैं, आप सभी को वर्ल्ड फार्मेसी डे की शुभेच्छा देता हूँ और रुकता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके शब्द हमेशा ही हमें मोटिवेशन देंगे। और जैसा कि आपने जो हमारे समक्ष एक आइडिया रखा है, हम जरूर, ऑलरेडी हमारी संस्था कोरोना में 20,000 वायल्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर।